Hello students, I am Amit Goyal, faculty of St. Andrews Institute of Management and Technology, Gurugram, Department BCA, topic congruence relation. Now in this topic we have studied about the congruence relation of two numbers between A and B. See, the notion of the congruence modulo M was invented by, this is the scientist name, Carl Friedrich Gauss, and does much to simplify these congruence relationship between two numbers. Now see, we can how can we write the modulus? We can tell him the modulo or modulus. Let A and B. Let's suppose हमारे पास दो नंबर हैं A and B. M belongs to Z. Z means integer where M is greater than 0. It means positive integer. We can say that A is congruent to B modulo M, written like this. A ट्रिपल स्ट्रेट लाइन्स डालेंगे जैसे कॉन्ग्रुएंस के साइन में डालते हैं. B mod M, इसका मतलब क्या समझ लो. इफ़ M इज़ डिवाइडेड बाई A माइनस B, अगर हम M को डिवाइड करते हैं A माइनस B से, वी कॉल M A मॉड्यूलस. और इस सिचुएशन में अगर ये डिवीज़न पॉसिबल है तो इट इज़ ए मॉड्यूलस, अदरवाइज इनकॉन्ग्रुएंट, नॉट अ कॉन्ग्रुएंट. लाइक दिस, सी एग्जाम्पल में लिखा है हमारे पास M इज इक्वल टू 11. वी हैव -1 कॉन्ग्रुएंस टू 10 और मोड में लिख दिया मैंने 11. तो इसका मतलब जो मोड है 11 विल शुड बी डिवाइडेड बाय -1 -10. इट मीन्स A माइनस B. A इज़ -1 एंड B इज़ 10. A माइनस B हमने लिखा -1 -10, इट मीन्स -11. और वी हैव, इट मीन्स -11 इज डिवाइड बाई 11. तो इट मीन्स हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है. अदरवाइज इफ़ वी हैव 108 not congruent to 7 mod 11, it means if we in which A is equal to 108 and B equals to 7, since 11 is not divided by 108 minus 7. 108 minus 7 is 101. 101 is not divisible by 11. It means it is not congruent to this. M equals to 2. डू वी हैव A congruence B mod 2. इसका मतलब क्या है, 2 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय A माइनस B. अगर 2 A से डिवाइड होता है तो वी कैन से इट इज़ अ कॉन्ग्रुएंस, अदरवाइज नॉट. और कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड होता है इट इज़ अ इवन नंबर. इन अनदर वर्ड A माइनस B मस्ट बी इवन. दिस इज ट्रू इफ़ A एंड B द सेम पैटर्न पार्टी, दैट इज़ बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड. या तो दोनों ऑड होने चाहिए, दोनों इवन होने चाहिए. 2 ऑड नंबर का डिफरेंस भी इवन ही होता है. अगर M इक्वल्स टू 1 है और हमने लिख दिया यहाँ पे शो दैट फॉर एनी A एंड B वी हैव A congruence टू B mod 1, इट मीन्स एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1. व्हेन डू वी हैव A congruence to 0 mod M, it means M is always divisible by A minus 0, right? Thus the connection with divisibility M by A if A is congruence to 0 mod M. Now in this video I am telling you the number of steps we should follow and type of questions which will be coming in our examination. Now student, this is a general rule by which we can find the value of x in the linear congruence general format. Rules for now we can find the value of x and in which ax is congruence to b mod n. First of all find GCD of a n. a और n का हमें क्या निकालना है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि HCF निकालने का क्या मेथड होता है हमारे पास. लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसका HCF फाइंड आउट कर सकते हैं. और इसका हमने वैल्यू लिख लिया D. लेट सपोज D इज़ द वैल्यू ऑफ GCD ऑफ A एंड N. फाइंड D mod N. इट मीन्स these are the number of solution are possible. फाइंड करेंगे हम D mod M. D mod M का मतलब होता है बेटा D डिवाइड बाय D mod N. कैलकुलेट करेंगे हम इसके अंदर. आफ्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ D, now following the step number 3, B divided by D. If B is always divided by D without showing any remainder except 0, so if possible, so it means solution exists. Otherwise if B divided by D or any remainder will be remain except 0, so solution is not possible. Divide both the side by D. फिर हमें क्या करना है, दोनों साइड D से डिवाइड कर देना है. मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. इट मीन्स A into A inverse x equals to B into A inverse mod n.
तो हमारा जो जनरल सोल्यूशन आएगा उसमें फिर हम कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करने के बाद नाउ विल गेट द आंसर। नाउ दिस इज एग्जांपल 10x कॉन्ग्रुएंस टू मोड 5। ठीक, इस एग्जांपल के अंदर हमें वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। नाउ कंपेयर दिस विद द जनरल इक्वेशन। दिस इज द जनरल इक्वेशन ax कॉन्ग्रुएंस टू b मोड n। ठीक, अगर इसमें कंपेयर करेंगे हम तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो बेसिकली देखिए किस तरह से निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय कंपेयरिंग दीज वैल्यूज वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 10, b equals to 10 and n equals to 5. Now we have the value of a, b and n. Now follow the step number 1, getting the SCF of find the value of find the GCD of a and n। a और n का जो GCD हमारे पास निकलेगा हम उसको किससे कंसिडर करेंगे, d से। ठीक, now see I have completed the question. First of all we have calculated the value of GCD as you see in the video, a comma n। a means 10 and n means 5. After comparing the value we will get the value of a, b and n and finding the value of GCD of 10, 5। 10, 5 के अगर हम GCD यानी SCF निकालेंगे तो कितना आएगा, GCD 5, 0, 0 इज रिमाइंडर, 5 इज कोशेंट। सेकंड केस में क्या होता है, कोशेंट जो हमारे पास डिवाइजर होता है वही हमारा डिविडेंड बन जाता है। और नाउ वी विल गेट द रिमाइंडर 0। रिमाइंडर फर्स्ट केस में कितना था, 5, दैट विल बी द डिवाइजर ऑफ द सेकंड केस in multiplicative, or we can say we can follow the Euclidean algorithm also. Now we will declare 5 as d। d हमारे पास कितना आ गया, 5। इन द सेकंड स्टेप वी हैव टू डिवाइड b डिवाइड बाई d। सेकंड स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे पीछे से जो मैंने स्टेप्स लिखवाए थे, b डिवाइड बाई d, b को हमने d से डिवाइड किया, इट मीन्स 2 डिवाइड बाई 5। इफ 2 डिवाइड बाई 5 वी विल गेट रिमाइंडर, सो इट मीन्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर b d से पूरा डिविजन हो जाता है विदाउट गेटिंग एनी रिमाइंडर एक्सेप्ट 0, so it means we can the solution is possible, otherwise solution is not possible. Now here I will take another example to understand how can we calculate the value of x. 14x congruence 12 mod 18. Understand the solution, how can we solve the question and find the value of x. First of all, सबसे पहला स्टेप क्या था हमारे पास, we will compare the question with ax congruence b mod n and getting the value of a, b and n by comparing the equation with the question. a equals to 14, b equals to 12 and n equals to 18. After getting the value of three variable we will calculate the GCD of a comma n. Now GCD of a comma n equals to क्या होगा, d। अब हमने GCD निकाला 14 और 18 का, लॉन्ग डिवीजन मेथड या यूक्लिडियन एल्गोरिथम जो भी आप यूज़ करना चाहो। तो 14 और 18 इन दोनों का अगर हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे GCD, तो आंसर कितना आएगा, 2 इज़ द वैल्यू ऑफ d। In the second step we have to divide b divided by d। b is your 12, see in your question, after comparing the value of equation we get the value of b equals to how much, 12 divided by 2। 2 को 2 से डिवाइड 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, नाउ गेट द आंसर 6 विदाउट एनी रिमाइंडर एक्सेप्ट 0। तो इट मीन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ फॉलो द थर्ड स्टेप, डी मोड एन। डी मोड एन मीन्स 2 मोड 18। डी कितना आया था हमारे पास, 2 आया था, हमने GCD निकालता है 14 और 18 का। मोड एन, एन कितना था हमारे पास, क्वेश्चन में चेक करो, एन इज इक्वल टू कितना था, 18 कंपेयर कराया था हमने। 2 मोड एन इक्वल्स टू, इट मीन्स 2 मोड एन का मतलब होता है 2 जो हमारा लास्ट डिवाइजर है, तो इट मीन्स 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नाउ फॉलो फोर्थ स्टेप, डिवाइड बोथ द साइड बाय डी। जो भी हमारा डी आंसर आया है उसको हम क्या करेंगे, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम दोनों साइड डी से डिवाइड करेंगे। हमने क्या किया, 14x कॉन्ग्रुएंस टू 12 मोड 18। जो क्वेश्चन था हमारे पास 14x इक्वल्स कॉन्ग्रुएंस टू 12 मोड 18, हम क्या करेंगे उसको उससे डी से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। नाउ सी वी हैव डिवाइड टू बोथ साइड, 14x डिवाइड बाई 2 कॉन्ग्रुएंस 12 डिवाइड बाई 2 मोड 18 डिवाइड बाई 2। मैंने तीनों वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड किया, लेफ्ट में भी राइट में भी। नाउ विल गेट 7x कॉन्ग्रुएंस टू 6 मोड m, 6 मोड 9। नाउ सी फॉलो द फिफ्थ स्टेप, आफ्टर गेटिंग द इक्वेशन मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। हमारे पास एक आंसर था बेटा 7, अगर आप पीछे देखेंगे तो एक आंसर 7 आएगा, और एक 7 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7 रेज़ टू द पावर 1, और वी कैन से 1/7। तो हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, ए के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बोथ साइड। तो 7 इंटू 7 रेज़ टू द पावर -1 इंटू एक्स कॉन्ग्रुएंस 6 इंटू 7 रेज़ टू द पावर -1 मोड
9। पहले हमने बोथ साइड किससे डिवाइड किया था, डी से, अब हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया किससे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। नाउ स्टूडेंट सी व्हाट चेंजेस आई हैव डन इन द क्वेश्चन। 6 × 7⁻⁻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 ⁻
find the value? Simply C. 7 into C mod n equals to 1. It means, इसका मतलब है कि 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, देन 9 से डिवाइड करें, एंड वी विल गेट द रिमाइंडर 1. ये इक्वल्स टू 1 जो लिखा है बेटा, ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है. रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. ठीक. अब 7 हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. C की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले C इक्वल टू क्या लगाया? 1 लगाया. 7 इंटू 1 मोड 9, यानी 9 से अगर डिवाइड करेंगे 7 को तो 1 रिमाइंडर नहीं आएगा. फिर 14 लगाया मैंने, 7 2 जा 14 आ गया. 14 को अगर डिवाइड करते हैं 9 से तो कितना आएगा? 9 1 जा 9, देन 5 विल बी द रिमाइंडर. 1 तो रिमाइंडर नहीं आएगा. इन अनदर केस वी हैव डिवाइड द वैल्यू ऑफ 7 बाई 3. 21 मोड 9 नहीं है, मोड 9 2 जा 18, 3 रिमाइंडर आ गया. एंड 28, 7 4 जा 28, 9 3 जा 27 और 1 रिमाइंडर. देखिए बेटा, लास्ट केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है कि 28. इट मीन्स C की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. C की वैल्यू जैसे ही 4 आ गई तो इट मीन्स वी विल गेट द इन्वर्स. नाउ सी, वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 7 इन्वर्स बाय 4. C की वैल्यू इक्वल टू 4 कैसे फाइंड आउट किया था हमारे पास? ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. दोबारा एक बार सुन लो इस वीडियो को कि C की वैल्यू कैसे 4 आई थी इन्वर्स निकालने के लिए. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ साइन इन्वर्स इज इक्वल टू 4. हमने साइन इन्वर्स की वैल्यू 4 पुटअप करी. अब आ गया 6 इंटू 4 मोड 9. 6 4 जा 24, 24 mod 9. It means 24 divided by 9 and put the and get the remainder. अगर हम 24 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 18, 18 6 रिमाइंडर आ गया. नाउ द वैल्यू ऑफ x नॉट इक्वल्स टू 6. But in the starting of the question I told you that there is a 2 solution because the value of d is 2. So there is a 2 solution of x. Now study this kind of equation by which we can find the another value xk equals to x0 plus k and divide by d. ये सारी वैल्यूज हमको पता है. x नॉट हम निकाल चुके हैं 6 प्लस k कितना है हमारे पास 1. फर्स्ट वैल्यू निकालनी है हमें. पहले 0 वैल्यू निकालती है, x0 फिर x1. n इज़ 18 एंड d इज़ 2. हमने कट किया 2 9 जा 18, 6 प्लस 9 कितना हो गया? 15. 15 is just another value. So we can find the 2 values in this congruence. This kind of equation is also seen in our question paper also. So practice this type of question for your exam.